start with the idea what we have got. I tell you why I am going to organize this session for you. In the recent past, in the month of Jan and Feb, we received one letter from CBSE wherein it was instructed that first phase of MEP will be attended by the principals. That I have done on 5th of Feb. Thereafter we have conducted one session for the teachers. And now after doing these two things, we were directed to talk to the parents to let them know what the policy is. So it is to sensitize you about the NEP, National Education Policy. National Education Policy में it has its background already. Policies of country, are existing. First policy, education policy, came into being in 1968 in the time of Mrs. Indira Gandhi. Thereafter, second education policy was announced by Mr. Rajiv Gandhi, Education Minister, Dr. Ramesh Pokhriyal ji, and formerly Education Minister Parkesh Javadekar ji. उन्होंने अनाउंस किया as the instance of Honorable Prime Minister of India. So this is the background that we have already had three policies. Now the present policy we would like to discuss. I talk to you in brief. Thereafter we will show you one complete video also, so that the points are more clear to you. Basic objective of this policy is to shift from rote learning to experiential learning. इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि पहले क्या होता था, what was in the past, we just ask the students learn it, cram it, write and then forget. ये होता है, हर सेशन में होता है, everywhere it happens. I have attended one course in moral education at Wednesday, Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education in Mysore. They range from rote learning to experiential learning. So far, experiential learning is concerned, our teachers have already undergone training sessions conducted by CBSE. Experiential learning means simply learning based on experience. When we are putting the student in a particular, जब डाल के सिखाते हैं, hands on practice करवाते हैं, that gives the child experience. एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है. जैसे मान लो किसी को हम इलेक्ट्रिसिटी में काम करने के लिए कहते हैं, घर में बल्ब जोड़ने के लिए कहते हैं, तो उसको कई टाइम लग जाता है. आपको भी लगा होगा, कभी ना कभी आपने काम किया होगा. तो उसके बाद काम की तार के पास है, कोई नहीं जाता, तो इसमें करंट लग जाएगा. हम भी बच्चे को भी बात करते हैं, हम क्या कहते हैं कि डियर एल्डर्स, वी हैव दिस एक्सपीरियंस, इट कैन पुट यू इन ट्रबल, इट कैन कॉज यू loss. So that way you need to be careful. So that is kind of experience. अभी दूसरी बात, maybe you are aware of it, you are not aware of it, you heard it somewhere or you are not कहते हैं बाड़ियाँ के बच्चे बड़े होशियार होते हैं. अक्सर लोग का मैंने कहते हैं बाड़ियाँ के बच्चे, डालियाँ के बच्चे बड़े होशियार होते हैं. क्यों होंगे? वो ये नहीं है कि वो बादाम खाते हैं या कोई खाती खाई. कारण क्या है, जो उनके छोटे छोटे बिजनेस है, किसी की छोटी दुकान है, ठीक है, उस दुकान पे से बोल देते हैं कि बेटा घंटा बैठो यहाँ. जब घंटा बैठेगा कस्टमर का तो पता नहीं है कब आ जाए. कस्टमर आता है, वो बच्चा उसको अंदर कस्टमर कॉन्सेप्ट डील करता है. किसी को उधार देता है, किसी को नगद देता है. नगद देता है तो पैसे काउंट करके बच्चा वापस देता है, उधार देता है तो उसको लिखता भी है, चेंज भी देता है. उससे क्या होता है, तो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है. उससे क्या आता है, राइटिंग भी आती है, मैथमेटिक्स भी आता है. अब जो अपने दूसरे बच्चे हैं, हम ये मैं नहीं कह रहा दूसरे लायक होते हैं, दूसरे तरफ क्या कहते हैं, जितना भी बच्चे की बड़े मजबूत होंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे. क्यों होंगे स्ट्रॉन्ग? वो काम करते हैं खेतों में,
मान लो खेत की रोटी पानी देने जाना है बच्चा, तो सर्दी गर्मी जो मर्जी हो जाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं. So ultimately what I mean to say, all this is based on experience. Experience makes you learn something. जैसे कहते हैं practice makes a man perfect. तो है ना? So policy says all learning should be competency based learning through art integration. Competency means whatever the potential a child has, we have to act accordingly and we have to teach the student according to that only. कई बार बच्चे का पोटेंशियल ज्यादा होता है हम कम सिखाते हैं, कई बार पोटेंशियल कम होता है हम ज्यादा सिखाते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकंड थिंग, it should be through art integration. Art integration means we forget about traditional methods of teaching. The states it was 10 plus 2. 10 plus 2 means first class to 10th class, then 2 years plus 1 and plus 2. These 12 years it was the responsibility of the government to look after schooling of the children. But now they have changed it to 5 plus 3 plus 3 plus 4 is equal to 15. If 5 plus 3 plus 3 means does not age, it doesn't mean age. I tell you, first 5 years. 5 means first 5 years of education, not of age, will be utilized for learning. 3 years, these are the years of education, and plus 3 years. By the age of 18, your board will be able to complete your 12th class. Now, these 4 stages I have already discussed: foundational stage, preparatory stage, middle stage, and secondary stage. Foundational up to class 2nd. Up to class 2nd means wherein 2 things have been mentioned in the policy, that is foundational numeracy and foundational literacy. जिसमें हम बच्चों को ये काउंटिंग सिखाते हैं, ABC सिखाते हैं, थोड़ा बहुत लिखना सिखाते हैं. वो कहते हैं ये तो आप ट्रेडिशनल सिस्टम से सिखाते हैं, चलो ये कॉपी पकड़ी हाथ पकड़ा ऐसा. बट वी which makes strong foundation of the child. जो बच्चा फर्स्ट 5 years में फेल हो जाता है, मान लो was not able to learn reading or writing or identification, that child can never succeed in life. वो फाउंडेशन, मैंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा. एक बच्चे को फर्स्ट टाइम आप जिस हाथ से पकड़ के लिखा दोगे उसको आप पूरी जिंदगी चेंज नहीं कर सकते. इसलिए therefore we have to be very particular, we have to be very careful in this regard. So we are also doing it, and they say this work should be done by the qualified teachers only. No untrained teacher should be appointed. These days government has also started trying. आपने सुना होगा पंजाब में आंगनबाड़ी वर्कर काम कर रहे हैं. पहले नहीं होते थे, पहले स्कूलों में फर्स्ट से एंट्री होती थी, जहाँ गुजारा होता था. But now Anganwadi workers are also working. So similarly, we have a preparatory stage. There also they are saying that don't do only traditional teaching. It should be RD stage 9th to 12th जो किया गया है. इसमें what important is, what you have to understand, what you have to know after doing the class 2 examination, है ना, after passing class 2. We are always in a confused state of mind. What to do? क्या कॉलेज में भेजें, क्या करें, है ना? Always कोई कॉमर्स स्ट्रीम है, कोई आर्ट स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम है, मेडिकल स्ट्रीम है. पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद सारी स्ट्रीम्स खत्म हो जाएंगी. कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, स्ट्रीम का नाम नहीं होगा. फिजिक्स वाला हिस्ट्री भी साथ में पढ़ सकता है, फिजिक्स वाला हिंदी भी पढ़ सकता है, हिंदी वाला फिजिक्स पढ़ सकता है. So that will be the choice of the student to decide what subjects she will be learning, will be studying, subject to the subjects available in the school, subject to the availability of the courses as per instructions of the CBSE. जितने courses ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्ट्रीम्स को स्ट्रीम्स को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है. वो सारी स्ट्रीम्स कर दी गई हैं. अब ये हम पूछा बेटा कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है.
Then higher education after class 2. ये पहले क्या होता था? When you somewhere वो हम आपको दिखाते हैं, उसमें भी ऑलमोस्ट सारी बातें बताई गई हैं। बाद भारत में नए लड़ाकू विमान आए। ये भारत में आया बहुत बड़ा बदलाव है और 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। यानी भारत में आज दो बहुत बड़े बदलाव हुए। इसलिए रफाल के बाद अब हम नई शिक्षा नीति की बात करेंगे। कहते हैं जब किसी देश में कोई बड़ा बदलाव करना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज इसकी शुरुआत हो गई है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज इस नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। इसलिए आज हम आप सबको बताएंगे कि इससे देश के तमाम छात्रों, उनके परिवार और उनके माता पिता के जीवन में अब क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। अगर आप छात्र हैं या किसी छात्र के माता पिता हैं तो आपको ये सारी जानकारियां बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसका करिकुलम NCERT द्वारा तैयार किया जाएगा और इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का एक वर्ष शामिल होगा, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल और फिर पहली और दूसरी कक्षा के 2 साल। इसके तहत बच्चों को खेल कूद और अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी, यानी इन कक्षाओं के छात्रों के लिए किताबों का बोझ अब पहले जितना नहीं होगा। इसलिए हम कहेंगे कि जो छोटे बच्चे अब स्कूलों में जाएंगे और अपने शिक्षा की यात्रा को आरंभ करेंगे वो बहुत किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगले 3 साल यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटीज जैसे विषयों से करवाया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे और इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के छात्र शामिल होंगे। इस स्टेज में छात्रों को तय पाठ्यक्रम के मुताबिक पढ़ाया जाएगा और इसके बाद 9वीं से 12वीं कक्षा तक इस फॉर्मेट की 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। ये 4 साल की स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति गहरी समझ पैदा की जाएगी, उनकी विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब यह है, यानी अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो अब वो ऐसा कर पाएगा, और अगर अकाउंट्स का कोई छात्र, कॉमर्स का कोई छात्र इतिहास की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। लेकिन संभव है कि इसके लिए अलग अलग विषयों का एक पूल तैयार किया जाएगा और आपको उस पूल से ही अपनी पसंद के विषयों का चुनाव करना होगा। यानी अगर विज्ञान के छात्र को इतिहास में दिलचस्पी है और उसके पूल में ये दोनों विषय शामिल हैं, तभी छात्र इनकी पढ़ाई एक साथ कर सकता है। हालांकि अभी इस पर पूरा स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन पहले की जो व्यवस्था होती थी, हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम्स मानी जाती थी, या तो आप साइंस लेते थे या कॉमर्स लेते थे या आर्ट्स यानी ह्यूमैनिटीज लेते थे। और अगर आपने ह्यूमैनिटीज लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भी आप शायद साइंस नहीं पढ़ सकते, साइंस लिया है तो ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकते। ऐसी चीजें पहले हुआ करती थी अभी तक, लेकिन अब ये सब बदल जाएगा। अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट्स पढ़ सकते हैं, एक साथ इतिहास भी पढ़ सकते हैं और फिजिक्स की पढ़ाई भी कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और आपकी राष्ट्रभाषा में ही होगी। यानी अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त नहीं होगी। माफ कीजिएगा, अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ये गुजराती भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे, और अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के तौर पर आपको पढ़ाई जाएगी। यानी स्कूलों का जबरदस्ती अंग्रेजीकरण का दौर अब समाप्त हो जाएगा। 6ठी कक्षा में पहुंचने के बाद छात्रों को कंप्यूटर कोडिंग सीखने का मौका मिलेगा।
यानी अब भारत के छात्र चीन जैसे देशों की तर्ज पर छोटी उम्र में ही, क्योंकि 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं, तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं, वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट